अब हम देखते हैं ये सिग्निफिकेटर्स, ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस, प्रॉमिस ऑफ चार्ट्स, ये सब क्या चीजें हैं जो हम केपी एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं. ओके, व्हाट इज दैट व्हिच मेक्स केपी एस्ट्रोलॉजी मोर इजीली यूजेबल? इट इज द सिंपल रूल्स that are there, which is called as grouping of houses. So जैसे marriage, if we talk about marriage, it's about seventh house. Marriage is all related to seventh house. तो सेवेंथ हाउस में अगर ग्रुपिंग मैरिज की बात करें तो इट इज सेकंड हाउस, 11th हाउस, 7th हाउस. इफ इट इज लव मैरिज देन 5th हाउस. तो ये अगर ग्रुप कहीं हमारे दशा अंतर दशा में एक्टिवेट हो रहे, डिपेंडिंग अपॉन आल्सो अबाउट आवर एज, तो ये ग्रुप ऑफ हाउसेस जैसे महादशा अंतर दशा में आते हैं, तो इवेंट ऑफ मैरिज कैन हैपन. ओके, तो ये चॉइस और चांस हमको अवेलेबल है मैरिज. बट देयर आर इवेंट्स where here which are in our control. There are events in our life which are which just happen in our life. Okay, which just happen in our life. There is a chat somewhere. I will just see to that chat question in some time. Okay. Then if I talk about other life event, so sir, my lagna is Libra. Okay, so I have connected with your webinar. Very good, sir. All कहीं ना कहीं through sublords, through nakshatras, थ्रू लग्न, कहीं मेरी खुद की चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि, there can be lot of things connected with me, connected with this current time, that brought all of us together. Yes sir, you are rightly. Minu ji, yes you are right madam. I am Leo. Yes, so कहीं पे मेरा सेकंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये जो नंबर्स है, इट इज रिलेटेड टू मनी. कौन बताएगा 2, 6, 10, 11? कहीं अगर किसी को पता है ग्रुप ऑफ हाउसिंग केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सीखा होगा तो, कि सेकंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस कौन से ग्रुप से रिलेटेड है? डे टू डे के काम की चीज है, बताइए. चलो चैट बॉक्स में लिखिए. जस्ट सिलेक्ट परेश एंड राइट डाउन what this rightly. Many people are very right. People are saying dhan bhav, money house, finance house. Yes, accumulation of wealth. वेल्थ आया तो एवरीवन इज नाउ, कहीं वो मेरा लेक्चर सुन के कहीं कोई सो रहा था, अब सब जाग गए क्योंकि अब पैसे की हम बात कर रहे हैं. यस, बिकॉज दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड. फिजिकल मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, it helps to take decisions of our problems. Yes sir, without one thing, if not active in our chart, many of our life events होते होते रह सकते हैं. अगर एक इंपॉर्टेंट पार्ट मनी, फाइनेंस, 2, 6, 10, 11 नहीं है, और इंपॉर्टेंट हाउस क्या है, अगर मैं आपके साथ अभी जुड़ रहा हूं, if now if I am getting connected with you, what is that one house that is making me connected with you? come on लिखिए चैट में, मैं देख रहा हूं चैट को. वो एक हाउस कौन सा है जो मुझे आपको आपके साथ कनेक्ट कर रहा है? वो कौन सा हाउस है? कम ऑन, पार्टिसिपेट एवरीवन. चलो मैं चैट बॉक्स को यहाँ पे शेयर करता हूँ. इफ वी कैन ऑल सी, एडमिन कैन वी मेक सी एवरीवन द चैट बॉक्स? 1 minute, let me see if I can share the chat box. Yes. How can I do that? Just 1 minute. Okay, I think here it is. The chat box is here. Just select everyone. I have to just select everyone. So here it is. Okay, so 1 minute. So now just make everyone see what is there in the chat. Just remove other things. Okay, so everyone can type. Everyone would be able to see. वो क्या important है भाव? Which house is important? Which is connecting ourselves, which is connecting us. Everyone can come on camera now. Come on camera. Let us see each other. है ना, मैंने काफी टाइम आप लोगों को कैमरे से वंचित रखा. I am really sorry. But it was important from the point of view of जो charts मुझे दिखाने थे, जो presentation बताना था उस point of view से. But everyone come. Even within some time we will we will unmute so that people can physically ask questions also. Everyone come. Let us now connect. बताइए मुझे कौन सा हाउस हमको कनेक्ट करता है? एक हाउस जो हमको कनेक्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट. कौन बताएगा? one house that connects everyone.
Okay, now I have popped up my chart. Let me see whether I can still. Okay, so here I'm sharing my other screen. Okay, okay, so no, I cannot do that. So it's here only. So now it's only with everyone. Okay, so gallery view, yes, gallery view. So one house, unmute, but one at a time. Can tell me which house it is that is connecting every one of us. हमको connect कर रहा है बताइए. Raise hands. So we will unmute. Raise hands. We will unmute. Everyone participate. क्या है, कंटिन्यूस मैं ही बात करूंगा तो काफी लोगों का आदत होता है लोरी सुनने जैसा, तो सो जाते हैं. और संडे भी है, तो आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी दैट आई केप्ट यू वेटिंग एंड आई वाज कंटिन्यूसली मैं ही बात कर रहा था. मैं रियली सॉरी हूं उसके लिए. सो अब हम सब इकट्ठा वी विल पार्टिसिपेट. तो रेज हैंड्स करिए एंड एडमिन प्लीज टेल मी हु हैज रेज हैंड्स सो दैट आई कैन और अनम्यूट देम सो दैट दे कैन टेल मी. Someone is telling third house. Okay, someone is telling सबको भी privately निकाल दीजिए. Let everyone get connected with everyone. Remove all that thing. Everyone choose everyone. We cannot do that for everyone so that they don't have to. अच्छा, you also have to do from your side. Select everyone. तो जब कोई भी लिखेगा तो सबको वो दिखेगा. तो काफी लोगों ने दिया है. मैं बता देता हूँ राइट आंसर और करेक्ट आंसर जो मैं समझता हूँ. यू आर नॉट रॉन्ग, ऑलवेज टेक प्ले. मैं भी राइट हूँ हर बार, ऐसे भी नहीं है. लेकिन थोड़ा स्टडी किया, काफी साल इसमें डाले, तो इसलिए मैं बताता हूँ आपको. इट इज 7th house. 7th house. Anyone except me, it may be my wife, it may be my family members. It is my it is the 7th house. So many people are nodding because they are right. Yes, you are right. Yes. And those who are write down सीख लीजिए, यहीं पे लिखना शुरू करिए. क्लास हमारा शुरू हो गया है. सो 7th हाउस है जो मेरे अलावा बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, एनी अदर पर्सन, मेरा चाइल्ड हो, भले चाइल्ड हो तो मेरा 5th हाउस है. अगर कोई भी मेरा चाइल्ड है 5th हाउस है. पण मेरा ब्रदर सिस्टर है तो वो मे बी एल्डर है तो 11th हाउस है. अगर वो मेरा यंगर है तो 3rd हाउस है. कोई नेबर्स है तो 3rd हाउस है. So all 12 house will come, but still if anyone other than me, 7th house. Okay, 7th house. तो अगर कहीं मेरा 7th house अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा से what I am trying to tell, what I mean by अच्छा and बुरा, good or bad, write down in chat box what do you mean by अच्छा and बुरा. What can make a difference between good and bad if I say of any house. Of course my connection or my 7th house connection with some houses which I could say good, which I would say bad. Is that right? Write down right or wrong कि क्या मैं सही बता रहा हूं. ओके, मास कम्युनिकेशन नहीं काउंट करेंगे सर. मास कम्युनिकेशन प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए भावेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं. मास कम्युनिकेशन नहीं काउंट कर सकते हैं. Anyone other than me की मैं बात कर रहा हूँ. एनी सिंगल पर्सन. मास कम्युनिकेशन में ऑफ कोर्स 3rd हाउस ऐड हो जाएगा, 11th हाउस ऐड हो जाएगा, या ऑलमोस्ट सब हाउस. अगर कोई फॉरेन से है तो 12th हाउस ऐड हो जाएगा, है ना. अगर कोई ऑकल्ट साइंस से कनेक्टेड है तो मे बी 8th हाउस को भी हम ऐड कर सकते हैं. कोई इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर्स है तो उसके लिए भी हम 8th हाउस को कनेक्ट कर सकते हैं. हैप्पी मैरिड लाइफ, एक्सॉल्टेड प्लैनेट सिटिंग, देन गुड. यस सर, यू आर राइट. बट अगर कहीं मेरा 7th हाउस कनेक्टेड विद 11th है जो डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है. वन हाउस वेयर एनी हाउस गेटिंग कनेक्टेड एंड योर डिजायर्स गेट फुलफिल्ड. वो कौन सा हाउस है बताइए. राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हिच इज दैट हाउस. है ना, जो आज यहाँ पे आपको अगर आपका वो हाउस कनेक्टेड होगा, एक्टिवेटेड होगा, तो वो जो 3 बोनसेस है जो चार्ट रीडिंग के हमको करने हैं, मे बी आज वहां पे आप आ जाएंगे. तो कौन सा हाउस होगा वो आपके डिजायर्स जो फुलफिल कर सकता है. यस, ऑल डबल वंस आर कमिंग. एंड नाउ करंट टाइम में आप देखेंगे 2-2 चल रहा है. 1-2-2-2 1-2-2-2. एंड व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज 1-1-1-1.
we are adding numerology, angel numbers, all these things are all connected. So now it is 1 2 1 2 3, a sequence number going on, 1 2 3 1 2 2 3. So yes, one house that can give all our desires fulfilled, 11. But what is that one house? What is that one house which will give you that, which will connect you to that 11? Okay, write down which is that one house. एक वो कौन सा घर है मेरे horoscope में? Yes, but people have started to give that one magic number, that we tell. Come on, 11 number हो गया sir and madams, everyone, 11 हो गया. अब वो कौन सा एक घर है, which can connect us to that 11? जिसको उल्टा करूं सीधा करूं, वो नंबर एक अलग नंबर हो जाता है. चलो क्लू भी दे दिया अब मैंने. एक वो नंबर नहीं जो उल्टा सीधा करने पे सेम दिखता है, पर एक ऐसा नंबर जो उल्टा सीधा करने पे चेंज हो जाता है पूरा. Yes, now the numbers are coming. 6, actually it is 9. जो उल्टा करने पे 6 हो जाता है, पर it is 9. That lucky house, which can give us that 11th house. Okay, so many are right. Okay, so it is the luck house. चलो अब मैं आपको 1 to 12 सब हाउस के बारे में बताता हूँ. And simultaneously before I start from about first house, whoever knows about first house, write so that people can read, people can read, जिनको भी मालूम है वो लिखते जाइए. मैं फर्स्ट हाउस से शुरू करने वाला हूँ. तो फर्स्ट हाउस के बारे में जिनको पता है 2-3 वर्ड्स लिखिए, नॉट ओनली वन सिंगल वर्ड, 2-3 वर्ड्स लिखिए. ओके, 2-3 वर्ड्स लिखिए. सो फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट, ये देखिए मेरा हाथ कहाँ पे चल रहा है, ऑल अबाउट. तो सब लोग करिए ऐसा, सब लोग करिए फर्स्ट हाउस अपने हाथ को, ये जो यहाँ पे मेरे सामने मैं खुद बैठा हूं, तो आप लोग फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू. तो अगर मैं कैसे हूं, यानी आप सब लोग कैसे हैं, तो कहां से देखेंगे? फर्स्ट हाउस से देखेंगे. तो अगर फर्स्ट हाउस में अगर एरीज राशि है समझो मेरे चार्ट में, तो मैं कैसे होऊंगा? कहीं ना कहीं वो मेरीज राशि का सिग्निफिकेशन आएगा, जिसका प्लेनेट लॉर्ड है ना. अगर वो, अच्छा अभी मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, सब लोग उसका मजा लो और साथ में आप लोग भी लिखते जाओ. समझो मेरा लग्न मेरा फर्स्ट हाउस अगर एरीज है, जिसका लॉर्ड मार्स है, और वो अगर पॉजिटिव हाउस में बैठा है तो मैं कैसे होऊंगा, और वो अगर नेगेटिव हाउस में बैठा है तो मैं कैसे बिहेव करूंगा. अभी या किसी के चार्ट में अगर पॉजिटिव हाउस एक्टिवेट होंगे तो मैं कैसे बात करूंगा, और नेगेटिव हाउस है. अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव हाउस कौन से हैं, चलो वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेनी पीपल आर टोटली न्यू टू केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी. तो पॉजिटिव हाउस है 9th हाउस है, 11th हाउस है, 5th हाउस है, ये पॉजिटिव हाउस को मानेंगे हम. और 6ठा 8वां 12वां 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस इन जनरल आर काउंटेड एज नेगेटिव हाउस. ओके, इन जनरल अभी समझने के लिए हम उसको नेगेटिव मानेंगे. वैसे हर हाउस पॉजिटिव है, हर हाउस नेगेटिव है. ओके, एवरी हाउस इज पॉजिटिव, every house is negative in context, but here for simplicity 6, 8, 12 is negative, 5, 9, 11 is positive. तो अगर मेरा मार्क्स 1 कैसे पॉजिटिव होगा तो मैं बिहेव करूंगा, या मेरा बिहेवियर होगा इन जनरल. और अगर वो 6, 8, 12 से होगा तो मैं कैसे बिहेव करूंगा. यस, मेनी पीपल हैव गिवन participants reduce, let them reduce sir, that is not an issue. जो यहाँ पे लास्ट तक रहेगा वो कुछ सीख के जाएगा, और वो जो सीख के जाएगा वो हमारे स्पेशल कोर्सेज में ही होता है ना. इन जनरल हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, लोगों को समझा कि बेसिक ही है, पर सर माहौल पूरा क्रिएट, बेसिक भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो आए हैं वो सब एस्ट्रोलॉजर या केपी एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है. there are totally so many people have come who don't know the A of astrology. That is why I have to start from very basics, and it was a webinar, ये वेबिनार था ही इसके लिए कि वेरी बेसिक से मैं समझाऊं ताकि लोगों को समझ में आए. ओके, तो पॉजिटिव हाउस एंथुसियाज्म, यस सर, एंड नेगेटिव होगा तो वही अभी मैं, जैसे किसी ने लिखा अरे पीपल हैव रिड्यूस फ्रॉम 155 टू 125, क्या हो गया ना, डिप्रेस हो गया, स्ट्रेस में आ गया, गुस्सा आ गया, क्यों? कनेक्टेड विद 6 8 12. तो जब भी आपका जब भी मास अभी आपका लग्न एरीज नहीं है, तब भी कोई कारण से आपका मार्स अगर 6, 8, 12 से कनेक्ट हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं आप कैसे बिहेव करेंगे.
यू नो कहीं अचानक गुस्सा हो जाना, थोड़ा सा कहीं किसी व्हीकल को चलते चलते टच कर दिया और उसी समय पे आग बबूला हो जाना, एंगर एग्रेशन आ जाता है। तो क्यों आ जाता है बताइए? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाई दैट कैन हैपन, व्हाई दैट कैन हैपन, राइट डाउन। कम ऑन कम, सब लोग आ जाइए अभी, है ना, सबका बैंडविड्थ आज खोल दिया है हमने वाईफाई का, सब लोग कैमरे पे आ जाइए। ओके, सो यस पीपल आर राइटिंग। अगर मंगल मेरा नेगेटिव हाउस से जुड़ जाएगा कहीं 6, 8, 12, ऑफ कोर्स प्लैनेट्स को हम ऐड कर सकते हैं, दूसरी राशियों को ऐड कर सकते हैं, तो और हमको डिटेल में समझ में आएगा। पर वही अगर मंगल है भाई पॉजिटिव हाउस से कनेक्टेड है, तो दैट पर्सन और दैट मैन, लेडी, मैडम, जो भी होंगे एंथुसियास्ट होंगे, पैशन होगा उनमें कुछ करने का, अभी कुछ करके बताने का। यस आई एम राइट, आई एम राइट। Raise hand if I am right. Raise hand if I am right. Yes, everyone raise hand if I am right. Okay, तो अब जब भी हम right बोलूंगा मैं, raise hand करिए। जब भी मैं wrong बोलूंगा तो मुझे ठेंगा भी बताइए। Yes, let us participate. तो अगर मैं अभी बताऊं कि मेरा अगर सेकंड हाउस, मेरा जो लग्न स्थान में अगर सेकंड राशि वृषभ राशि, टॉरस राशि अगर है, तो उसका लॉर्ड कौन होगा? चलो लिखिए चैट बॉक्स में, उसका कौन होगा लॉर्ड। और वो अगर है ना पॉजिटिव हाउस से कनेक्टेड है, तो मैं किस एक या दो वर्ड में मैं कैसा होऊंगा, मेरा बिहेवियर। और वो अगर नेगेटिव हाउस से कनेक्टेड है तो मैं कैसा होऊंगा, या मेरा बिहेवियर या मेरा प्रेजेंस, हाउ इट वुड बी। यस, वीनस, मेनी पीपल हैव रिटन राइट, बहुत लोगों ने। तो सेकंड अगर राशि अगर मेरे फर्स्ट हाउस में है या कहीं पे भी होगी, तो सेकंड राशि यानी कि वृषभ टॉरस राशि का लॉर्ड वीनस है, और वीनस है, और वो अगर पॉजिटिव है तो चीयरफुल होगा। मैं कपड़े पहनूंगा इस्त्री वाले होंगे, मैं परफ्यूम लगाऊंगा। और वही अगर रॉन्गली कहीं किसी के साथ जाएगा तो मेरे कपड़े थोड़े कहीं से टिचिंग होंगे, इस्त्री अच्छी नहीं होगी, मैं परफ्यूम नॉर्मल ब्रांडेड नहीं यूज करूंगा। मानेंगे लोग इसको राइट थंब और रॉन्ग थंब, है ना। तो अगर चलो एक टिप और क्लू मैं दे रहा हूं, केपी एस्ट्रोलॉजी का। मेरे चार्ट में अगर मेरा वीनस अच्छा है या बुरा है, उसको मुझे अच्छा करना है, ये टिप दे रहा हूं सबके लिए, अच्छा करना है। लिखिए क्या करूंगा मैं उसके लिए, चलो जिसको पता है लिखिए। ये मास्टर स्ट्रोक्स है जो आगे हमारे साथ जुड़े नहीं जुड़े आप घर पे लेके जाएंगे, जिसको आप यूज करना शुरू करेंगे आपको उसमें से रिजल्ट मिलेंगे। लिखिए कि क्या करना चाहिए, मेरा वीनस अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है, जो भी है, तो मैं एक सिंपल चीज क्या करूं रोज, जिससे मैं मेरे चार्ट को चेंज करूं, मेरे वीनस को चेंज करूं। यस, ब्रांडेड परफ्यूम्स यूज करूं, जब भी कपड़े पहनूं आयरन होने चाहिए, जब भी कपड़े पहनूं सुबह को फ्रेश आयरन होने चाहिए। अगर ये सिंपल दो चीजें भी करते हैं, और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जो काफी लोगों ने लिखा है, यानी दे आर वेरी वेरी राइट, अगर हस्बैंड है अपने वाइफ को, सिर्फ अपने वाइफ को अगर स्माइल दे दी, स्माइल, अ स्माइलिंग फेस एंड रिस्पेक्ट, आपको परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक बार आयरन क्लोथ्स नहीं होंगे, फिर भी आप आपके वीनस को अच्छा कर पाएंगे। दिस इज द प्रैक्टिकल रेमेडी इन केपी एस्ट्रोलॉजी। All our family members are 9 planets that are then in my chart. आप समझ रहे हैं, मेरे चार्ट में जो 9 प्लैनेट्स है, जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, उसके लिए एस्ट्रोनॉमी देख रहा हूं, उसके लिए ग्रह नक्षत्र तारों के फोटे को देख रहा हूं, वो मैं और मेरा फैमिली ही है। आपको मालूम है, मैं अगर मेरे वीनस कितना भी अच्छा होगा मेरे चार्ट में, अगर मेरे को उसका बैंड बाजू में ना बैंड बाजा बजाते हैं हम शादी में, अगर मेरे वीनस की मुझे बैंड बजानी है, सिंपल एक रेमेडी लिख लो अभी, बैंड बजाने के लिए भी रेमेडी लिख लो, पर कभी नहीं करना लाइफ में, पर लिख लो। क्या करना है, अपना जो स्पाउस है बस उसको आप
है ना, आपका डिप्रेस चेहरा बताओ, स्ट्रेस चेहरा बताओ, उससे अच्छी तरह से बातें नहीं करो. Try to show all that negative feelings, and you see start happening. Same movement, your Venus will start to go down. Start to go down. You may feel that after some days, some months, some years. Why? Because collectively आपने कुछ अच्छे कर्मस जमा किए हैं Venus के, इसके लिए वो टाइम ले रहा है आपको दिखाने के लिए. But take my words, that very movement, your Venus, you can start making negative. Okay, तो सिर्फ रिस्पेक्ट अपने स्पाउस को, यानी दिस इज ओनली नॉट फॉर हस्बैंड्स इन रिलेशन टू द वाइफ्स कॉन्टेक्ट. हाँ, ये यहाँ पे वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में भी है अपने हस्बैंड के लिए. एवरीवन क्लियर? सब लोग चेहरा अपना, यार मैं कुछ स्ट्रेस या कुछ है ना, ऐसा कोई बोरिंग सब्जेक्ट की नहीं बात कर रहा हूं, है ना. सब लोग टेंशन में आ गए. मेरे वाइफ को अगर मुझे चेहरा अभी सुबह को रोज मेरा वीनस अच्छा करने के लिए सर ने और तो कोई उपाय दिया नहीं, कि कुछ डोनेशन करूं या कुछ स्टोन्स पहन लूं. ये देख लीजिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं 25 साल से, आज तक एक भी जेमस्टोन नहीं पहना है. तंत्र मंत्र जेमस्टोन मेरे एस्ट्रोलॉजी में कट है, डिडक्ट है, आता ही नहीं है. सिखा देता हूं, पर ना मैं यूज करता हूं, ना मेरे पार्टिसिपेंट्स यूज करते हैं, ना मेरे क्लाइंट्स यूज करते हैं. पहने हुए को मैं निकलवाता हूं मेरे कंसल्टेशंस में. पहने हुए रिंग्स को मैं निकलवाता हूं मेरे क्लाइंट्स के जो पहने होते हैं. बहुत लोगों का फिर भी अर्ज रहता है, तो देन आई मे अलाउ वन, मे बी अलाउ वन. वो भी मेरे पास स्पेशल चेकिंग टेक्निक्स है जिससे मैं चेक करने के बाद अलाउ करता हूं. उसका डिस्कशन कहीं और कभी हम करेंगे. पन जैसे वीनस को अच्छा करने के लिए, अगर जुपिटर को अच्छा करना है मेरे प्लैनेट, मेरे इसमें, तो सबसे पहला लिखिए व्हाट डज जुपिटर रिप्रेजेंट्स टू मी. यानी टू मी जब मैं बोलता हूं या जब मैं ये हाथ बताऊंगा, यानी आप खुद, तो जुपिटर मेरे अगर हॉरोस्कोप में, सबके हॉरोस्कोप में जुपिटर है ना, सबके हॉरोस्कोप में मार्स है. मंगल दोष होने से मार्स कहीं घूमने नहीं जाता है, आपके ही हॉरोस्कोप में होता है. ओके, तो सब लोग लिखिए, अगर जुपिटर, अगर नहीं जुपिटर आपके चार्ट में है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है. यस, जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, एवरीवन. और सब लोग बाकी के जिनको जो टोटली नए हैं, वो ये चैट्स को देखते जाइए, तो उसी में से आप सीख लेंगे. उसी में से आप काफी चीजें आज सीख लेंगे. ओके, तो क्या है? इट रिप्रेजेंट्स नॉलेज, इट रिप्रेजेंट्स विजडम. अगर एक चीज हमने हमारे लाइफ में कंटिन्यूस रखी, विजडम, नॉलेज एंड विजडम, तो जुपिटर को हम अच्छा कर सकते हैं. लेकिन और एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे जुपिटर को अच्छा करने के लिए रेमेडी है. बाकी सब लिख लीजिए, जिन्होंने यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ लीजिए, और जिनको नहीं मालूम है लिख लीजिए. ये रेमेडी है, आपको जेमस्टोन नहीं पहनना पड़ेगा लाइफ टाइम. टेक माय वर्ड्स, अगर आप ये सिंपल रेमेडीज आज लिख लेते हैं. ओके, यस, चोटी रखो. यस, यू आर राइट सर, बट स्टिल in modern context it may become a little difficult for everyone choti rakhna. Okay, somewhere but taking the right knowledge, practical application of any knowledge that we have, not only keeping it to ourselves. Okay, not only keeping it to ourselves, respecting गुरु का आशीर्वाद. वन थिंग, योर फादर, फादर के दो रोल है. अच्छा लिखो, अभी फादर के दो रोल क्या है? 2 प्लैनेट्स फादर रिप्रेजेंट करता है. कौन लिखेगा? राइट डाउन 2 थिंग्स दैट योर फादर रिप्रेजेंट्स. व्हाट इज दैट? सब लोग लिखिए. 2 थिंग्स दैट योर फादर रिप्रेजेंट. यस, इट इज सन एंड जुपिटर बोथ. तो यानी कि जुपिटर को मुझे अच्छा करना है, तो मुझे मेरे फादर को एक तो क्षमा करना है, फॉरगिव करना है. आई हैव टू फॉरगिव माय फादर एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट माय फादर. आई हैव टू बाउ. चलो फिजिकली मैं नहीं, अगर मैं पैर छू सकता हूं, मैं मॉडर्न हूं, आज मेरे पास इंटरनेट है, वाईफाई है, आईफोन है, ये तो मैं क्यों बाउ? ठीक है, माइंड से, मेंटली, अपने माइंड में आप उनको बाव कर सकते हैं. वो भी आपके जुपिटर को ठीक करेगा. आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का जुपिटर का खड़ा
स्टोन है ना, वो अल्टीमेटली स्टोन है जिसको वैल्यू हम देते हैं, वरना वो जीरो है वैल्यू का। अगर कल से सब लोग जेमस्टोन पहनना बंद कर देना, डायमंड्स और जेमस्टोन, और आप मार्केट में खरीदने जाओ, वो जीरो वैल्यू हो जाएगा, जीरो वैल्यू। हम उसको इतना पैसा देके उसका वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। और सही मैं एक बात बताऊं, ये जहां पे से भी निकल रहे हैं ना हमारे मदर अर्थ से, मदर अर्थ ने उनको वहां पे क्यों बनाया है? आपको मालूम है क्यों बनाया है? चलो लिखो, किसको मालूम है क्यों बनाया है? कि कुछ जेमस्टोन्स वहीं पे है, कुछ लोकेशंस में अर्थ के, कुछ जेमस्टोन्स कहीं और ही है, अवेलेबल है। बताओ क्यों, क्यों ऐसे मदर अर्थ ने या यूनिवर्स ने या हमारे सुप्रीम गॉड ने ऐसा क्यों किया है? लिखो लिखो। I am getting passionate. जरा एसी और फास्ट करो। केसर का तिलक करना जुपिटर अच्छा करने के लिए, यस सर। पर सिंपलेस्ट, केसर का तिलक, केसर लेना, तिलक करना, बहुत लोगों को वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग है। तो सिंपल, माइंड, आंख बंद किया 1 सेकेंड, फादर को देखा, पैर पकड़, उनके जैसे प्रणाम करते हैं ऐसे कर लिए। इट जस्ट टेक्स 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, and you can make your Jupiter over a period of time good. और उसी जुपिटर को अगर मुझे खराब करना है, चलो लिखो, मेरे जुपिटर को मुझे खराब करना है, लिखो लिखो लिखो, टाइप टाइप टाइप। मेनी पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, आई लाइक दैट, है ना। और थोड़ा है ना, थोड़ा फ्री करो अपने, ये चेहरे को थोड़ा फ्री करो। और जिनके यहाँ पे ये थोड़ा है ना ऐसा वो नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे कान, हमारा जो कान है उसको हम थोड़ा मरोड़ दो, थोड़ा मरोड़ दो। क्यों मरोड़ करना है चलो बताओ? क्योंकि ये जो है ना बल्ज है ना, बल्जिंग, ये हमारा जो बल्जिंग है ना, ये हमारे ब्रेन को खोल देगा। मेमोरी इंप्रूवमेंट का ये पॉइंट है। एक्यूप्रेशर, मैं एक्यूप्रेशर सीखा हूँ, एक्यूपंक्चर भी सीखा हूँ 96 में, रेकी, प्राणिक हीलिंग के भी मैंने कोर्सेज किए। सो एनी ऑकल्ट साइंस यू कैन टॉक, आई कैन आंसर, मे बी आई कैन स्टार्ट, आई कैन एटलीस्ट ट्राई। तो ये इसको थोड़ा पुल कर दो। और उसके बाद ये जॉ है, राइट जॉ, लेफ्ट जॉ, ये जॉ है। बेसिकली जब भी हमको गुस्सा आता है और हम अगर बाहर उसको कभी नहीं फेंक पाते हैं, या उसको हम अगर जमा कर लेते हैं हमारे बॉडी में, तो ये जॉ में वो जमा होते हैं, ये जॉ में। कई बार जब हमारे दांत दुखते हैं तो वो बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने मिठाई खाया है उसके लिए नहीं दुखते हैं, बट इट इज बिकॉज ऑफ दैट एंगर दैट यू हैव कलेक्टेड, that gets transferred into your teeth. अच्छा, टीथ कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है? लिखिए, जब तक मैं कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूं। राइट डाउन व्हाट टीथ इज, व्हिच प्लैनेट रिप्रेजेंट टीथ, है ना। तो ये गुस्सा वहां पे जो ट्रांसफर होता है हमारे गम्स में, तब हमारे दांत दुखते हैं उसके कारण भी। तो यहाँ पे ये सिंपल, हमारे जो अंगूठे है ना, इसको हम यहाँ पे अगर लेके रोटेट करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट 15-20 seconds every day, you will see that you will start releasing that stress, that anger, that aggression that you are collecting, and within few days, few weeks, you will find that smile. You can easily smile now, you can easily, and आपको गलत है ना जबरदस्ती का स्माइल नहीं करना पड़ेगा, आपका नेचुरल इजी स्माइल अपने आप आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको वो थोड़ा एफर्ट तो लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इमोजी को भी हमको कहीं से कॉपी पेस्ट करके हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक में डालना पड़ता है, अपने आप नहीं आ जाता है ना, अपने आप नहीं आ जाता है। सो टेक दैट एफर्ट, तो कर लीजिए थोड़ा उसको रिलीज थोड़े दिनों में। अगर क्यों, हमारे तो रेगुलर वेबिनार्स होते रहे हैं और होंगे अभी, एंड नाउ यू आर अ कम्युनिटी, आप लोग सब लोग हमारे कम्युनिटी में हैं, तो एवरी टाइम नाउ यू विल बी अपडेटेड ऑफ ऑल आवर अपकमिंग वेबिनार्स। ओके, हमारे अपकमिंग वेबिनार्स को यू विल बी गेटिंग व्हाट्सएप से, कहीं से आपको रेगुलर मैसेजेस मिलेंगे। तो हम रेगुलर मिलेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जो आज फॉर ड्यू टू सम रीजन नहीं हंस पाए, वो उस दिन हंसेंगे। ओके, और हम सब उनको हेल्प करेंगे, हम सबको हेल्प करेंगे, हम सबको हेल्प करेंगे, बिकॉज एवरीवन, सिर्फ एक आदमी अगर आगे जाएगा लाइफ में, तो क्या वो आगे जा सकता है? गांधी जी अकेले छड़ी लेके निकले थे, लेकिन जब उनको दुनिया ने जुड़ा तो एक सत्याग्रह हुआ। विल एवरीवन एग्री? सत्याग्रह कभी हुआ? एक जन निकला, लेकिन उसके साथ सब लोग जुड़ गए। तो क्या हम क्या हम जुड़ सकते हैं और लाइफ फ्री ऑफ जेमस्टोन्स करके सिंपल हमारे फैमिली मेंबर्स को
हमारे प्लैनेट्स को हम अच्छा कर सकते हैं और हमारे हॉरोस्कोप आज की तारीख में जैसा भी है, लिख लो आज का टाइम अभी 1243 12:43 हमारी आज की तारीख 23/8/2020 23082020 12 is 2.43. Write down this time and keep, where you have got a new idea of changing your horoscope without any puja, without any agarbatti, without any diya, without any gemstone, without any tantra mantra. You write down, and then if you find out after few months by following these simple remedies, if you don't find changes in your life, WhatsApp, my number is already given to you, and again I will repeat 98693 52061 और वापिस और मेरे को मेरे सब प्लैनेट्स की बैंड बजानी है, तो जो मैं बता रहा हूं उसका रिवर्स वो भी हम करके देखेंगे, उसका रिवर्स, टू अंडरस्टैंड and to make my chart a very prospering chart into a very depressed chart. We can do that. That chance, that choice is given to us. So it is not that destiny cannot be managed. हम लोग जो बोलते हैं ना कि मैं तो चार्ट को बिलीव नहीं करता हूं, डोंट बिलीव, उससे आप 1 mm का भी 1 mm अर्थ के ऊपर नहीं आ जाएंगे, 1 mm के भी 1 mm आप अर्थ से ऊपर नहीं आ जाएंगे इन एयर। ओके, इफ यू से आई डोंट बिलीव इन 5 एलिमेंट्स, नॉट एन इश्यू, आप बाहर जाइए, बारिश अगर होगी आप भीगने वाले हैं। तो पंच तत्व नेचर जो हमने पहले स्टार्टिंग में प्रेयर ली है, हमारा नेचर, हमारे पंच तत्व, हमारे प्लांट किंगडम, हमारे सीज, ओशंस, क्लाउड्स, विंड्स, स्काई, ये हमारे भगवान हैं। अगर ये सिर्फ एक दिन 2 घंटे के लिए, 2 घंटे क्या 2 मिनट, 2 मे बी 1 मिनट और हाफ मिनट भी अगर चले जाए ना इलेक्ट्रिसिटी के जैसे, तो 700 करोड़ प्लस लोग में से कितने बचेंगे? वन कैन ओनली विजुअलाइज।